say it. Don't make me say it. आजकल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है. It's freezing nowadays. It's freezing nowadays. सब बड़े आराम से हो गया. Everything went smoothly. Everything went smoothly. सब गड़बड़ हो गया. Everything went wrong. Everything went wrong. अपने अपने सीट बेल्ट्स बांध लो. Fasten your seat belts. Fasten your seat belts. इसे भरो. Fill this out. Fill this out. जैसे कोई फॉर्म वगैरह होता है ना भरने के लिए, तो उसके लिए आप fill out का यूज करेंगे. Fill this out. इस फॉर्म को भरो. Fill this form out. अंतर ढूंढो. Find the differences. Find the differences. अपना काम पूरा करो या फिर अपना काम खत्म करो. Finish your work. Finish your work. जो पहले है वो पहले है. First things first. First things first. इसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं. First thing is first. नियमों का पालन करो. Follow the rules. Follow the rules. अपने दिल की सुनो. Follow your heart. Follow your heart. उस बारे में भूल जाओ. Forget about that. Forget about that. थोड़ा सो लो. Get some sleep. Get some sleep. वहां जल्दी पहुंचना. Get there early. Get there early. जाकर बाहर व्यायाम करो. Go exercise outside. Go exercise outside. जाकर पता लगाओ. Go find out. Go find out. जाकर उसे ले आओ. Go get that. Go get that. जाकर पॉपकॉर्न बनाओ. Go make popcorn. Go make popcorn. जाकर बैठो. Go sit down. Go sit down. कहीं और जाओ. Go somewhere else. Go somewhere else. उस तरफ जाओ. Go that way. Go that way. जाकर गर्माहट ले लो. अब गर्माहट आप जिस भी तरीके से ले, चाहे आग के आगे आग तापते हैं या फिर कुछ पीते हैं ऐसा गर्म जिससे गर्माहट हो जाए शरीर में, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे go warm up. Go warm up. जाकर हाथ धो लो. Go wash up. Go wash up. इसे किसी दूसरे को दे दो या किसी और को दे दो. Hand it over. Hand it over. नाश्ता कर लो. Have a snack. Have a snack. अब जैसे सुबह का नाश्ता है तो आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए शाम की बात कर रहे हैं तो नाश्ता का मतलब हल्का फुल्का कुछ खाना, तो उसे आप स्नैक बोलते हैं. तो आप बोलिए have a snack. मेरी पूरी बात सुन लो. Hear me out. Hear me out. Hear out का मतलब होता है पूरी बात सुनना. मेरी उठने में मदद करो. Help me up. Help me up. सपोज कि कोई चेयर पे बैठा हुआ है, वो अटक गया है, तो वो किसी और से बोलेगा कि help me up. मेरी उठने में मदद करो. Hey, पीछे घूमो. Hey, turn around. Hey, turn around. इतिहास खुद को दोहराता है. History repeats itself. History repeats itself. अपनी सांस रोको. Hold your breath. Hold your breath. अड़े रहो. Hold your ground. Hold your ground. मैं तुमसे कल मिलती हूँ. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. अगर अभी तक आपने add more water. Add more water. लगभग सभी गपशप करते हैं. Almost everyone gossips. फोन उठाओ. Answer the phone. Answer the phone. कुछ भी हो सकता है. Anything could happen. Anything could happen. कुछ भी चलेगा. Anything will do. Anything will do. चुप कर जाओ. Bite your tongue. Bite your tongue. ये आप तब यूज करते हैं जब आप कुछ बोलने ही वाले हो और चुप करके रह जाए, मतलब कि उस बात को बोले ही ना. दोनों नशे में थे. Both were intoxicated. Both were intoxicated. दोनों बेहोश थे. Both were unconscious. Both were unconscious. नाश्ता लग गया है. Breakfast is served. Breakfast is served. ध्यान रखिएगा, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलते. उसे यहां ले आओ. Bring that here. Bring that here. व्यापार सुधर गया है. Business has improved. Business has improved. मदद बुलाओ. Call for help. Call for help. बदलाव जरूरी है. Change is needed. Change is needed. बदलाव संभव है. Change is possible. Change is possible. बदलाव डरावना है. Change is scary. Change is scary. बच्चों को केक पसंद होते हैं. Children like cake. Children like cake. Christmas आ रहा है. Christmas is coming. Christmas is coming. Or you can say Christmas is approaching. Christmas is approaching. खिड़कियां साफ करो. Clean the windows. Clean the windows. गेट बंद करो. Close the gate. Close the gate. अपनी आंखें बंद करो. Close your eyes. Close your eyes. फिर जल्दी आना. Come again soon. Come again soon. आकर देखो. Come and see. Come and see. तुरंत आओ. Come at once. Come at once. आकर इसे लो. Come get it. Come get it. घर जल्दी आना या फिर घर जल्दी आओ. Home early. Come home early. आकर हमारे साथ सम्मिलित हो. Come join us. Come join us. Or you can say come and join us. आकर सबसे मिलो. Come meet everybody. Come meet everybody. सोचो क्या हो सकता है. Consider a possibility. Consider a possibility. That means कि सोच के देखो क्या कुछ संभावित है, क्या कर सकते हो. खुद को भाग्यशाली समझो. Consider yourselves lucky. Consider yourselves lucky. यहाँ पे yourselves यूज किया गया है, यानी कि एक नहीं कई लोगों की बात की जा रही है कि खुद को भाग्यशाली समझें आप लोग. भावनाओं पर काबू रखो. Control your emotions. Control your emotions. मेरे लिए खाना बनाओ. Cook for me. Cook for me. भ्रष्टाचार गलत है. Corruption is wrong. Corruption is wrong. मुझ पर विश्वास करो. Count on me. Count on me. अपने फुटकर गिनो. Count your change. Count your change. कौवे काले होते हैं. Crows are black. Crows are black. फालतू की बकवास बंद करो. Cut the nonsense. Cut the nonsense. मेरे साथ नाचो. Dance with me. Dance with me. नाचने में मजा आता है. Dancing is fun. Dancing is fun. खाना स्वादिष्ट था. Dinner was delicious. Dinner was delicious. तो यहाँ पे डिनर की बात की, अगर आप लंच की बात करें तो लंच यानी कि दोपहर का खाना, सुबह की बात करें तो आप ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं यानी कि नाश्ता. जरूर अंदर आओ. Do come in. Do come in. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जोर देके बोल रहे हैं कि अंदर आइए, तो आप do लगा रहे हैं, अदरवाइज आप सिर्फ come in भी बोल सकते हो, उसका मतलब हो जाएगा अंदर आ जाओ. इसे फिर से करो. Do it again. Do it again. इसे सौम्यता से करो, मतलब कि बहुत ही प्यार से. Do it gently. Do it gently. इसे बाद में करना. Do it later. Do it later. इसे खुद से करो या फिर इसे खुद से करना. Do it yourself. Do it yourself. कुछ करो जल्दी. Do something quickly. Do something quickly. अपना काम करो. Do your job. Do your job. खुराक दोगुनी कर दो. Double the dose. Double the dose. अपनी बाजी दोगुनी कर दो, यानी कि जो भी आपने शर्त में पैसे लगाए हैं उसे डबल कर दें, उसके लिए बोला गया बाजी. तो यहाँ पे आप इंग्लिश में बोलिए double your bet. Double your bet. और धीरे खाओ. Eat more slowly. Eat more slowly. शिक्षा आवश्यक है. Education. अगर आपके सामने दो चीजें रखी जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा, तो अगर आप बोलते हैं कोई भी चलेगा, मतलब चाहे ये वाला चाहे वो वाला, तो आप इस इंग्लिश में बोलिए either is acceptable. Either is acceptable. बहुत हो गया. Enough is enough.
इनफ इज इनफ। हर कोई इस पर विश्वास करता है। एवरीवन बिलीव्स इट, एवरीवन बिलीव्स इट। सभी तुम्हें दोषी ठहराते हैं। एवरीबॉडी ब्लेम्स यू, एवरीबॉडी ब्लेम्स यू। सभी डर गए। एवरीबॉडी गॉट स्केयर्ड, एवरीबॉडी गॉट स्केयर्ड। सभी जय जयकार कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज चीयरिंग, एवरीबॉडी इज चीयरिंग। चीयर आप खुशी के लिए भी यूज करते हैं जब खूब खुशी और उल्लास मना रहे होते हैं लोग, और जय जयकार के लिए भी आप चीयर का यूज कर सकते हैं। सभी सो रहे हैं। एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, एवरीबॉडी इज स्लीपिंग। सभी काम करते रहे। एवरीबॉडी केप्ट वर्किंग, एवरीबॉडी केप्ट वर्किंग। मुझे सब जानते हैं। एवरीबॉडी नोज मी, एवरीबॉडी नोज मी। वो सभी को पता है। एवरीबॉडी नोज दैट। अगर करते हैं। एवरीबॉडी लाइक्स हिम, एवरीबॉडी लाइक्स हिम। सभी मायूस दिख रहे थे। एवरीबॉडी लुक्ड डिसअपॉइंटेड, एवरीबॉडी लुक्ड डिसअपॉइंटेड। सभी बेचैन दिख रहे थे। एवरीबॉडी लुक्ड नर्वस, एवरीबॉडी लुक्ड नर्वस। सभी भ्रमित दिख रहे हैं। एवरीबॉडी लुक्स कंफ्यूज्ड, एवरीबॉडी लुक्स कंफ्यूज्ड। सबको मदद चाहिए। एवरीबॉडी नीड्स हेल्प, एवरीबॉडी नीड्स हेल्प। हर कोई खुशी ढूंढता है। एवरीबॉडी सीक्स हैप्पीनेस, एवरीबॉडी सीक्स हैप्पीनेस। सबको ऐसा ही लगा। एवरीबॉडी थॉट सो, एवरीबॉडी थॉट सो। सभी थोड़ा डरे हुए या फिर भौचक्के थे। एवरीबॉडी वाज स्टार्टर्ड, एवरीबॉडी वाज स्टार्टर्ड। स्टार्टर्ड का मतलब कि थोड़े डरे हुए। सभी आश्चर्यचकित थे। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। सबने अच्छा किया। एवरीवन डिड वेल, एवरीवन डिड वेल। यहां पे आप सोचेंगे अभी तक मैं एवरीबॉडी बोल रही थी, अब मैं एवरीवन बोल रही हूं और दोनों का मतलब सेम है, तो जी हां, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। एवरीबॉडी थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है, एवरीवन ज्यादा यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सब सो गए। एवरीवन फेल अस्लीप, एवरीवन फेल अस्लीप। सब में कमियां होती हैं। एवरीवन हैज फॉल्ट्स, एवरीवन हैज फॉल्ट्स। सबके साथ समस्याएं होती हैं। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स। सबके अपने राज होते हैं। एवरीवन हैज सीक्रेट्स, एवरीवन हैज सीक्रेट्स। सब दुविधा में है। एवरीवन इज कंफ्यूज्ड, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। सभी चुप हैं। एवरीवन इज साइलेंट, एवरीवन इज साइलेंट। सभी खड़े हैं। एवरीवन इज स्टैंडिंग, एवरीवन इज स्टैंडिंग। तो अगर आप किसी के खड़े होने की बात करें तो भी आप स्टैंड का यूज करेंगे, और अगर कोई खड़ा हुआ है अभी तो भी आप स्टैंड का यूज करते हैं। सब थक गए हैं। एवरीवन इज टायर्ड, एवरीवन इज टायर्ड। सभी परेशान हैं। एवरीवन इज अपसेट, एवरीवन इज अपसेट। सभी बातें करते रहे। एवरीवन केप्ट टॉकिंग, एवरीवन केप्ट टॉकिंग। हर कोई हर किसी को जानता है। एवरीवन नोज एवरीवन, एवरीवन नोज एवरीवन। पिज्जा सबको अच्छा लगता है। एवरीवन लाइक्स पिज्जा, एवरीवन लाइक्स पिज्जा। सब खुश दिख रहे थे। एवरीवन लुक्ड हैप्पी, एवरीवन लुक्ड हैप्पी। इसे सबने देखा। एवरीवन सॉ इट, एवरीवन सॉ इट। वो सभी कहते हैं। एवरीवन सेज दैट, एवरीवन सेज दैट। सब बहस करने लगे। एवरीवन स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, एवरीवन स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। सब हंसने लगे। एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। सब शांत रहे। एवरीवन स्टेड काम, एवरीवन स्टेड काम। सब भौचक्के रह गए। एवरीवन वाज स्टन्ड, एवरीवन वाज स्टन्ड। सब खत्म हो गया। एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। मतलब कि सब समाप्त हो गया। सब गंदा लग रहा है। एवरीथिंग लुक्स डर्टी, एवरीथिंग लुक्स डर्टी। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस कि एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी ये सभी सिंगुलर के तरीके से यूज होते हैं, तो सबके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, सब अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग लुक्स गुड, एवरीथिंग लुक्स गुड। सब बेकार था। एवरीथिंग वाज बैड, एवरीथिंग वाज बैड। सब ठीक था। एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन। सब सामान्य था। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सब ठीक था। एवरीथिंग वाज ओके, एवरीथिंग वाज ओके। सब एकदम सही था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सभी चीजें चल रही थी। दैट मींस सभी चीजें काम कर रही थी। एवरीथिंग वाज वर्किंग, एवरीथिंग वाज वर्किंग। तो यहां मशीनों से बात है कि जो भी चीजें थी वहां पे सभी काम कर रही थी, सभी मशीनें काम कर रही थी। सब बड़े आराम से हो गया। एवरीथिंग वेंट स्मूथली, एवरीथिंग वेंट स्मूथ। अगर आप किताब लेने जाते हैं, अगर आप इस तरीके से बोलते हैं मुझे थोक में लेना है, तो आप इकट्ठे सामान लेते हैं, तो आप बोलिए आई वांट टू बाय इन बल्क, आई वांट टू बाय इन बल्क। या फिर आई वुड लाइक टू बाय इन बल्क। थोड़ा सा अगर फॉर्मल तरीके से बोलना चाहे तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू बाय इन बल्क। थोक में लेना काफी सस्ता पड़ता है। इट्स मच चीपर टू बाय इन बल्क, इट्स मच चीपर टू बाय इन बल्क। जमीन ठंडी है। द ग्राउंड इज कोल्ड, द ग्राउंड इज कोल्ड। मेरी चाय ठंडी हो गई। माई टी हैज गॉन कोल्ड, माई टी हैज गॉन कोल्ड। जल्दी खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ईट क्विकली और द फूड विल गेट कोल्ड, ईट क्विकली और द फूड विल गेट कोल्ड। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। इट्स टू कोल्ड आउट, इट्स टू कोल्ड आउट। या फिर आप बोल सकते हैं आउटसाइड। मैं घर पर ही रुक रहा हूँ। आई एम स्टेइंग एट होम, आई एम स्टेइंग एट होम। आज काफी ठंड होगी। इट्स गोइंग टू बी क्वाइट कोल्ड टुडे, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट कोल्ड टुडे। मुझे ठंड लग रही है। आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड। उसमें कोई तमीज ही नहीं है। ही हैज नो मैनर्स, ही हैज नो मैनर्स। तमीज से रहो। माइंड योर मैनर्स, माइंड योर मैनर्स। क्या आप फिर से बता सकते हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप बोलते हैं कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। वह बिस्तर के नीचे छिप गया। ही हिड अंडर द बेड, ही हिड अंडर द बेड। हिड क्या है? हिड सेकंड फॉर्म है हाइड की। हाइड मींस छिपना, और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आपने यहाँ हाइड की सेकंड फॉर्म यूज की हिड। ही हिड अंडर द बेड। उसने पैसा जेब में छिपा लिया। ही हिड द मनी इन हिज पॉकेट, ही हिड द मनी इन हिज पॉकेट। तो आप ध्यान दें कि हाइड मींस छिपना भी होता है और हाइड मींस छिपाना भी होता है। दोनों ही सेंस में हमने इसे यूज किया। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो फिर क्या हुआ? कैन यू गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? कैन यू गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? आपकी राशि क्या है? व्हाट स्टार साइन आर यू? इट्स रियली वेरी नाइस सेंटेंस जहां बोलते हैं आपकी राशि क्या है। ये आप कई बार लोगों से पूछते हैं, तो इसके लिए आप इस तरीके से इंग्लिश में बोलिए व्हाट स्टार साइन आर यू। सो राशि के लिए आपने यूज किया स्टार साइन। अंदाजा लगाना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू गेस, इट्स हार्ड टू गेस। उससे मत पूछो। डोंट आस्क हर, डोंट आस्क हर। तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो। यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। जाकर पापा से पूछो। गो एंड आस्क डैड, गो एंड आस्क डैड। उसे अंदर बुला लो। आस्क हिम इन, आस्क हिम इन। मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर। मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, फॉलो मी। उसे यहां ले आओ। गेट दैट हियर, और यू कैन से ब्रिंग दैट हियर। क्या ये आपका है? इज दिस योर्स, इज दिस योर्स। यहां पे आप ये नहीं बोलेंगे इज दिस योर। और क्यों नहीं बोलेंगे इसके लिए आपको देखनी होगी मेरी वीडियो नंबर 166 जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का डे 3 है। उसमें आपको योर और योर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है ताकि आप आगे से कभी भी ऐसे वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज ना हो।
नेक्स्ट वन इज नहीं, ये उसका हो सकता है. नो इट कुड बी हर्स. नो इट कुड बी हर्स, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ये उसका है. आप बोल रहे हैं उसका हो सकता है, इसलिए आपने यहाँ पे कुड का यूज किया है. मुझे लगा शायद आप भूल गए हो. आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन. आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन. माइट के साथ हैव यूज करने का मतलब है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं. शायद चीजें बदल गई हो. थिंग्स माइट हैव चेंज्ड. थिंग्स माइट हैव चेंज्ड. सबके लिए पानी ले आओ. ब्रिंग वाटर फॉर एवरीवन. ब्रिंग वाटर फॉर एवरीवन. शायद वो रास्ता भूल गया हो. ही माइट बी लॉस्ट. ही माइट बी लॉस्ट. मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है. आई गॉट समथिंग टू शो यू. आई गॉट समथिंग टू शो यू. तुम्हें क्या लगता है कि कौन है? फोटो दिखाते हुए जब आप पूछते हैं कि क्या लगता है कि ये कौन है, तो वहां पे आप पर्सन के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पिक्चर में उसकी बात कर रहे हैं. तो आप बोलेंगे हु डू यू थिंक इट इज. हु डू यू थिंक इट इज. क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगी? डू यू थिंक आई विल win? Do you think I'll win? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. No, I don't think so. No, I don't think so. बोलने से पहले सोचा करो. Think before you speak. Think before you speak. कल उनकी बहस हो गई. They had an argument yesterday. They had an argument yesterday. चाबियां खनखनाना बंद करो. Stop jingling the keys. Stop jingling the keys. तो जिंगल यूज होता है उस साउंड के लिए जो खनखन की आवाज आती है, जैसे कि घंटी बजाना, तो उसके लिए भी आप जिंगल यूज कर सकते हैं. Stop jingling the keys. रोहन मेरे घर से 2 घर आगे रहता है. 2 घर आगे रहता है, इसके लिए आप बोलेंगे रोहन lives 2 doors away from me. रोहन lives 2 doors away from me. ये कोई आम फोन नहीं है. This is no ordinary phone. This is no ordinary phone. वो कोई आम व्यक्ति नहीं है. He is no ordinary person. He is no ordinary person. मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं करूंगी. I won't tickle you. I won't tickle you. उसे गुदगुदी करवाना अच्छा लगता है. She loves being tickled. She loves being tickled. क्या तुम्हारे हाथ साफ हैं? Are your hands clean? Are your hands clean? क्योंकि यहाँ पे दोनों हाथ की बात कर रहे हैं, इसलिए are your hands बोला. अदरवाइज अगर आप एक हैंड की बात करते तो आप बोलते is your hand clean. ठीक है. नेक्स्ट वन इज जाकर साफ कपड़े पहन लो. Go and change into clean clothes. Go and change into clean clothes. अरे गुस्सा मत हो. Oh, don't get mad. Oh, don't get mad. आप यहाँ पे don't get angry भी बोल सकते हैं और mad भी बोल सकते हैं. इसे साफ रखना. Keep it clean. Keep it clean. मैं कल की मीटिंग में मिलता हूँ आपसे. I'll see you at tomorrow's meeting. I'll see you at tomorrow's meeting. तुम्हारा उपाय मुझसे अच्छा है. Your idea is better than mine. Your idea is better than mine. तो यहाँ पे better than मैंने यूज किया है. ये good की comparative डिग्री और good एक irregular adjective है. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो नंबर 174 जरूर देखिए, जिसमें एडजेक्टिव्स की डिग्रीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, जिससे आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाना भी सीखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगला सेंटेंस. दैट इज अब कैसा लग रहा है. जब कोई बीमार होता है आप उसे दोबारा मिलने जाते हैं तो आप उसे आप कैसा लग रहा है, उसे इंग्लिश में पूछिए हाउ डू यू फील नाउ. हाउ डू यू फील नाउ. पहले से थोड़ा बेहतर. अ लिटिल बेटर. अ लिटिल बेटर. तो यहाँ पे सिर्फ बेटर कहने से यही मतलब होगा कि पहले वाली पोजीशन से आप उसे कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. अ लिटिल बेटर. मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है. आई फील मच बेटर. आई फील मच बेटर. अगर अभी तक आपने हे लिसन, हे लिसन, हाँ बोलो, या टेल मी, या टेल मी, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या हम बात कर सकते हैं, कैन वी टॉक, कैन वी टॉक, बस 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं अभी आई, आई विल बी बैक, आई विल बी बैक. कुछ चाहिए क्या? डू यू वांट समथिंग, डू यू वांट समथिंग, और सिंपली यू कैन से वांट समथिंग क्वेश्चन वाले टोन में. वांट समथिंग, नहीं कुछ नहीं, नो नथिंग, नो नथिंग. तो सिर पे क्यों खड़े हो? देन व्हाई आर यू क्राउडिंग मी, देन व्हाई आर यू क्राउडिंग मी. जब कोई आपके बहुत पास खड़ा होता है, घेर कर खड़ा होता है, तो आप वहां पे ये चीज यूज कर सकते हैं, व्हाई आर यू क्राउडिंग मी. जाओ यहां से, या फिर भागो यहां से. अगर छोटे बच्चे तो आप कहते हैं ना भागो यहां से, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं बज ऑफ, बज ऑफ. मेरे सिर पे मत खड़े हो. डोंट क्राउड मी, डोंट क्राउड मी. कुछ लाऊं आपके लिए? वुड यू लाइक समथिंग, वुड यू लाइक समथिंग. कोई समझाओ इसे. समवन मेक हिम अंडरस्टैंड, समवन मेक हिम अंडरस्टैंड. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डोंट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, डोंट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. तुम्हें दिख नहीं रहा मैं व्यस्त हूं. कांट यू सी आई एम बिजी, कांट यू सी आई एम बिजी. माफ करना. एक्सक्यूज मी, excuse me, or you can say I'm sorry, I'm sorry. तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? Didn't you hear what I said? Didn't you hear what I said? मुझे ये खिलौने चाहिए. I want these toys, I want these toys. तुम्हारे पास कितने सारे नए खिलौने हैं. यू हैव सो मेनी न्यू टॉयज, यू हैव सो मेनी न्यू टॉयज. ये पुराना वाला है. दिस इज द ओल्ड वन, दिस इज द ओल्ड वन. लेकिन मुझे यही वाला चाहिए. बट आई वॉन्ट दिस वन ओनली, बट आई वॉन्ट दिस वन ओनली. क्या तुम्हें ये पसंद है? डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस. मुझे ये बहुत पसंद है. आई लव दिस, आई लव दिस. ये मेरा पसंदीदा खिलौना है. दिस इज माई फेवरेट टॉय, दिस इज माई फेवरेट टॉय. और मुसीबत मत खड़ी करो. डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल, डोंट कॉज एनी मोर ट्रबल. इस तरह से बर्ताव मत करो. डोंट बिहेव इन दैट वे, डोंट बिहेव इन दैट वे. मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से बर्ताव करो. आई वॉन्ट यू टू बिहेव वेल, आई वॉन्ट यू टू बिहेव वेल. जब तक मैं तैयार न हो जाऊं बाहर इंतजार करो. वेट आउटसाइड अंटिल आई एम रेडी, वेट आउटसाइड अंटिल आई एम रेडी. मुझे परेशान करना बंद करो. स्टॉप बॉदरिंग मी, स्टॉप बॉदरिंग मी. तुम हर समय हर किसी को खुश नहीं रख सकते. यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम, यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम. उससे बात करो इस बारे में. टॉक टू हिम अबाउट इट, टॉक टू हिम अबाउट इट. ये हुई ना बात. दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट. उसे खुश करना मुश्किल है. ही इज हार्ड टू प्लीज, ही इज हार्ड टू प्लीज. उससे गुस्सा रहना मुश्किल है. इट्स हार्ड टू बी एंग्री विद हिम, इट्स हार्ड टू बी एंग्री विद हिम. जो होता है अच्छे के लिए होता है. एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट. उसको बहुत ज्यादा भी मत सुनाओ. जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं बहुत सुना देते हैं तो उसके लिए बोला जा रहा है, तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी टू हार्ड ऑन हिम, डोंट बी टू हार्ड ऑन हिम. शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया. परहैप्स आई वाज अ लिटिल टू हार्ड ऑन हर, परहैप्स आई वाज अ लिटिल टू हार्ड ऑन हर. मेरी चाय ठंडी हो गई. माय टी इज कोल्ड, माय टी इज कोल्ड. और यू कैन से माय टी हैज गॉन कोल्ड. मुझे ठंड लग रही है. आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड. मुझे जुकाम हो गया. आई हैव अ कोल्ड, और यू कैन से आई हैव गॉट अ कोल्ड. क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? डिड यू फाइंड अ जॉब, डिड यू फाइंड अ जॉब, और यू कैन से हैव यू फाउंड अ जॉब, हैव यू फाउंड अ जॉब. उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा. ही गेव हर अ हार्ड स्लैप,
He gave her a hard slap. इसे जोर से धक्का मारो, मान लो कोई दरवाजा नहीं खुलता तो कहते हैं इसे जोर से धक्का मारो. Give it a hard push. Give it a hard push. वो दिल का दौरा पड़ने से मर गया. He died of a heart attack, or you can say he died from a heart attack. वो ये देखने के लिए मरी जा रही है कि ये है क्या. She is dying to see what it is. She is dying to see what it is. ये तुम्हारे लिए अच्छा है. It's good for you. It's good for you. ये तो उसकी अच्छाई है. This is good of him. This is good of him. ये तुम्हारी गलती नहीं है. It's not your fault. It's not your fault. ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा. It will be as good as new. It will be as good as new. ये अच्छी बात है कि तुम हिले नहीं. It's a good thing you didn't move. It's a good thing you didn't move. अच्छी बात है. It's a good thing. It's a good thing. मुझे ये अच्छे से याद है. I remember it well. I remember it well. किसने सोचा होगा? Who would have thought? Who would have thought? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? What would you do if you were in my position? What would you do if you were in my position? बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल है. It's difficult to break bad habits. It's difficult to break bad habits. इतना शर्माने की जरूरत नहीं है. There is no need to act so shy. There is no need to act so shy. बस चुप होकर सुनो. Just shut up and listen. Just shut up and listen. तुम चुप क्यों नहीं हो जाते? Why don't you shut up? Why don't you shut up? क्या तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए बच्चों को चुप नहीं करा सकती? Can't you shut the children up for just 2 minutes? Can't you shut the children up for just 2 minutes? तो shut up means चुप करना भी होता है और चुप कराना भी होता है. बच्चों को चुप कराओ. Shut the children up. Shut the children up. बस सोमवार को जा रहा है. He is going on Monday. He is going on Monday. तो दिनों के नाम के साथ आप on का यूज करते हैं. मैं 1 मिनट में आया. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. मुझे नहीं नाचना है. I don't want to dance. I don't want to dance. मुझे बिल्कुल भी नाचना नहीं आता. I'm no good at dancing. I'm no good at dancing. Or you can say I'm not good at dancing at all. I'm not good at dancing at all. मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. My interview went really well. My interview went really well. वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी. She will be happy to see you. She will be happy to see you. अब क्या करें? What shall we do now? What shall we do now? और सभी कहाँ हैं? Where are others? Where are others? वे आ ही रहे होंगे. They must be coming. They must be coming. लेकिन कब? But when? But when? बस थोड़ी देर में. Just in a while. Just in a while. थोड़ी ही देर में वे तुम्हारे साथ होंगे. They will be with you in a while. They will be with you in a while. तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो. You can relax for a while. मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. जब आपको जोरों की भूख लगी होती है तो आप ऐसे बोलते हैं, तो इसके लिए आप बोलिए I'm famished. I'm famished. मतलब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है. ये बात उसे परेशान कर रही है. It's bugging him. It's bugging him. कोई चारा ही नहीं था. There wasn't a way out. There wasn't a way out. आखिर में अकल आई. Finally sense dawned. Finally sense dawned. तू तो गया. You are dead meat. You are dead meat. It's a phrase. तू तो गया. You are dead meat. उसकी किसी से नहीं पड़ती. She doesn't get along with anyone. She doesn't get along with anyone. हिम्मत है तुम्हें? Do you have guts? Do you have guts? तुम इससे दूर रहो. You stay out of this. You stay out of this. मुझे इसकी आदत नहीं है. I'm not used to it. I'm not used to it. तो आदत डाल लो. Then get used to it. Then get used to it. मैं आती हूँ. I'll be back. I'll be back. घूर किसको रही हो? Who are you staring at? Who are you staring at? तुम समझते क्या हो खुद को? Who do you think you are? Who do you think you are? भागो यहाँ से. Buzz off. Buzz off. मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा. I'll break your jaw. I'll break your jaw. समझा इसे. Make him understand. Make him understand. मैंने अपना वादा निभाया. I kept my promise. I kept my promise. मुझे किस बात का डर? What have I to fear? What have I to fear? मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा. I'll have you arrested. I'll have you arrested. अगर मैं पकड़ा गया तो? What if I get caught? What if I get caught? हम पकड़े गए. We got caught. We got caught. तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? How could you be so irresponsible? How could you be so irresponsible? मैं तुम्हारे बिना यहाँ से हिलूंगी भी नहीं. I won't budge from here without you. I won't budge from here without you. तुमने उसके मुंह पे उसे बेवकूफ बोल दिया. You call him a fool to his face. You call him a fool to his face. ऐसी रोंदू शक्ल लेके मत जाना. Don't go with this weepy face. Don't go with this weepy face. रोने से कुछ नहीं होगा. Crying won't help. Crying won't help. अब जाओ भी. Now go. Now go. अच्छा हुआ तुम आ गए. Good you are here. Good you are here. मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था. I was thinking about you. I was thinking about you. एक और ले आना. Get another. Get another. ठीक तुम्हारे पीछे या फिर बिल्कुल तुम्हारे पीछे. Right behind you. Right behind you. हमारे पास पूरा दिन नहीं है. We don't have all day. We don't have all day. तुम्हें मजाक लग रहा है. You find it funny. You find it funny. तुम्हारे अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you barge in? How dare you barge in? मैं डर गया. I got scared. I got scared. अगर तुम 10 गिनने तक बाहर नहीं आए, if you aren't out by the count of 10, if you aren't out by the count of 10, मैं अंदर घुस के तुम्हें मारूंगा. I'll barge in and beat you. I'll barge in and beat you. मैंने हमेशा आपकी बात मानी है. I've always listened to you. I've always listened to you. ये सरासर गलत है. This is out of line. This is out of line. हम उसके भरोसे बैठे नहीं रह सकते. We can't depend on him to help. We can't depend on him to help. मुफ्त की राय देना आसान है, खुद उस राय पर अमल करना मुश्किल है. It's easy to offer free advice, tough to follow it. It's easy to offer free advice, tough to follow it. सिर्फ तुम और मैं. Just you and I. Just you and I. थोड़ी देर और रुको. Stay a little longer. Stay a little longer. मैं रुक नहीं सकता. I can't stay. I can't stay. अंदर आ जाओ. Come on in. Come on in. जब आप नॉर्मली बोलते हैं अंदर आ जाओ तो बोलते come in. लेकिन अगर आप इस तरीके से बोलते हैं अंदर आ जाओ. Come on in. Come on in. ये सब है क्या? What's all this? What's all this? ये सब तुम्हारा ही तो कमाल है. All this came from you. All this came from you. खुद को भी कुछ श्रेय दे दिया करो. Give yourself some credit too. Give yourself some credit too.
बताओ तुम्हें क्या चाहिए? टेल मी व्हाट यू नीड, टेल मी व्हाट यू नीड। क्या आपको ये चीज चाहिए? इज दिस द स्टफ यू नीड, इज दिस द स्टफ यू नीड। ये हुआ बराबर का सौदा, स्क्वायर डील, स्क्वायर डील। या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर डील, दिस इज अ स्क्वायर डील। इसे वहां रख दो, पुट इट ओवर देयर, पुट इट ओवर देयर। डॉक्टर बनकर कैसा लगता है? हाउ डज इट फील टू बी अ डॉक्टर, हाउ डज इट फील टू बी अ डॉक्टर। अच्छा लगता है, इट फील्स गुड, इट फील्स गुड। क्या शुरू करें? शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट। घुटने टेको, नील, नील या फिर नील डाउन, नील डाउन। कितना आसान है, इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। पहले से ज्यादा आसान है, इट्स सिंपलर दैन बिफोर, इट्स सिंपलर दैन बिफोर। बस उसे यहां ले आओ, जस्ट गेट हिम हियर, जस्ट गेट हिम हियर। वक्त बहुत कम है, वी आर लो ऑन टाइम, वी आर लो ऑन टाइम। हम पता लगा लेंगे, वील फाइंड आउट, वील फाइंड आउट। तुम राक्षस हो, यू आर अ मॉन्स्टर, यू आर अ मॉन्स्टर। तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों, यू नो वेल व्हाई, यू नो वेल व्हाई। हमें जाना होगा, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो। कहां के लिए? वेयर टू, वेयर टू। रास्ते में बताऊंगा, आई टेल यू ऑन द वे, आई टेल यू ऑन द वे। क्या वो कुछ कह रहा है? इज ही सेइंग एनीथिंग, इज ही सेइंग एनीथिंग। एक शब्द भी नहीं, नॉट अ वर्ड, नॉट अ वर्ड। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, यू शुड थैंक मी, यू शुड थैंक मी। ये इतना उलझा हुआ नहीं है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जब वो आएगा तो मुझे फोन करेगा, व्हेन ही कम्स ही विल गिव मी अ कॉल, व्हेन ही कम्स ही विल गिव मी अ कॉल। ये फैसला आपका नहीं है, दैट्स नॉट योर कॉल, दैट्स नॉट योर कॉल। मुझे आंखों की जांच करानी है, आई नीड टू गेट माई आईज टेस्टेड, आई नीड टू गेट माई आईज टेस्टेड। सबसे पहले फोन करना मुझे सबसे सही लगा, आई थॉट इट बेस्ट टू कॉल फर्स्ट, आई थॉट इट बेस्ट टू कॉल फर्स्ट। जब मैंने उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया, when I saw him I recognized him at once, when I saw him I recognized him at once। मैं दो काम एक साथ नहीं कर सकता, मतलब कि मैं दो काम एक समय पर नहीं कर सकता। I can't do two things at once, I can't do two things at once। ये बुरी नजर उतारता है, it can nullify the evil eye, it can nullify the evil eye। संसार में बहुत बुराइयां हैं, there is too much evil in the world, there is too much evil in the world। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, money is the root of all evil, money is the root of all evil। मेरी पलकें भारी हो रही हैं, my lids are getting heavy, my lids are getting heavy। जाकर थोड़ी देर सो लो, go and take a nap, go and take a nap। उसकी पलकें झपने लगी, जब नींद आने लगती है पलकें अपने आप बंद होने लगती हैं तो आप बोलते हैं उसकी पलकें झपने लगी। Her lids began to close, her lids began to close। खुद को देखो आईने में, look at yourself in the mirror, look at yourself in the mirror। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, I'm no fool, I'm no fool। वो मेरी कोई दोस्त नहीं है, she is no friend of mine, she is no friend of mine। सच में 8 बज गए या मेरी घड़ी तेज है? Is it really 8 o'clock or is my watch fast? Is it really 8 o'clock or is my watch fast? इतना समय नहीं हो सकता, जरूर मेरी घड़ी तेज होगी। That can't be the time, my watch must be fast, that can't be the time, my watch must be fast। हमारी खटिया खड़ी हो रही है, इट्स कॉस्टिंग अस अ फॉर्च्यून, इट्स कॉस्टिंग अस अ फॉर्च्यून। जब कोई चीज बहुत महंगी होती है तो आप कहते हैं तुम्हारी खटिया खड़ी हो रही है, इट्स कॉस्टिंग अस अ फॉर्च्यून। वो जल्दी में थी, शी वॉज इन हेस्ट, शी वॉज इन हेस्ट। मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, आई कुडंट फुलफिल योर विश, आई कुडंट फुलफिल योर विश। आप मुझसे कहते रहे, यू केप्ट आस्किंग मी, यू केप्ट आस्किंग मी। शुरुआत तुमने की, खत्म भी तुम ही करोगे। यू स्टार्टेड इट एंड यू विल फिनिश इट, यू स्टार्टेड इट एंड यू विल फिनिश इट। वो मेरी सगी बहन है, सगी बहन या सगा भाई, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसे इंग्लिश में आप बोलिए होल की मदद से, होल सिस्टर या फिर होल ब्रदर। वो मेरी सगी बहन है, शी इज माई होल सिस्टर। होल सिस्टर का मतलब हो गया हैविंग सेम पेरेंट्स। क्या वो तुम्हारे सगे भाई हैं? आर दे योर होल ब्रदर्स, आर दे योर होल ब्रदर्स। वैसे ये सेंटेंस बोलना नहीं चाहिए पर हम बोलते जरूर है। उसके दिमाग में भूसा भरा है, या कई बार तो वैसे भी बोल देते हैं उसके दिमाग में गोबर भरा है। तो इसे इंग्लिश में बोलिए हिज हेड इज फिल्ड विद ट्रैश, हिज हेड। उसे बचाओ मत। जब आप किसी को किसी की बातों से बचाते हैं तो उसके लिए आप बोलिए डोंट डिफेंड हिम, डोंट डिफेंड हिम। तुम इतने परेशान क्यों हो? व्हाई आर यू सो पीव्ड, व्हाई आर यू सो पीव्ड। पीव इज एन इनफॉर्मल वर्ड, तो थोड़ा ध्यान से यूज कीजिएगा। वो जरूर व्यस्त होगी, शी मस्ट बी बिजी, शी मस्ट बी बिजी। वो बहुत भोली है, शी इज वेरी नेव, शी इज वेरी नेव। जल्दी से जल्दी उसकी शादी करा दो, गेट हर मैरिड एट द अर्लीस्ट, गेट हर मैरिड एट द अर्लीस्ट। ये लड़की भी ना, जब आप इस तरीके से किसी को बोलते हैं जैसे कि ये लड़की भी ना, दिस गर्ल इज टू मच, दिस गर्ल इज टू मच। या फिर आप बोलते हैं ये लड़का भी ना, दिस बॉय इज टू मच। या फिर आप कई बार इस तरीके से बोलते हैं आप भी ना, तो इंग्लिश में बोलिए यू आर टू मच, यू आर टू मच। चिंता करने की कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम इंडीड वेरी सॉरी, आई एम इंडीड वेरी सॉरी। कुछ जरूरी काम आ गया था, समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप, समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप। या फिर आप इस तरीके से बोलते हैं कुछ जरूरी काम आ गया है, तो आप बोलिए समथिंग इंपॉर्टेंट हैज कम अप। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं समथिंग अर्जेंट हैज कम अप। कुछ पक्का नहीं कह सकता, कांट से फॉर श्योर, कांट से फॉर श्योर। लेकिन कल तक आने की कोशिश करूंगा, बट आई ट्राई टू कम बाय टुमारो, बट आई ट्राई टू कम बाय टुमारो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, थिंक व्हाटएवर यू वांट, थिंक व्हाटएवर यू वांट। मैं उससे केवल एक बार मिली हूं, I've only met her once, I've only met her once। मैं उससे पहले एक बार मिल चुका हूं, I've met her once before, I've met her once before। क्या मैं उसे बस एक बार देख सकता हूं? Can I see her just the once? Can I see her just the once? कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? In which era you are living? In which era you are living? मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। I don't think that it will work out, I don't think that it will work out। मैंने पिछली बार उसे 2011 में देखा था, I last saw her in 2011, I last saw her in 2011। तुम्हें मुझे तुरंत फोन करना चाहिए था, You should have called me right then, You should have called me right then।
आगे से और ज्यादा ध्यान रखना। बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन, बी मोर केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट, बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्ट। ये अभी तक हो जाना चाहिए था। इट शुड हैव बीन डन बाय नाउ, इट शुड हैव बीन डन बाय नाउ। कोई आपकी बात सुने या ना सुने, ये जरूर सुनेगा। Whether anyone listens to you or not, he certainly will. Whether anyone listens to you or not, he certainly will. यहाँ पे ये के लिए he यूज किया क्योंकि वो इंसान जिसकी बात हो रही है वो आपके सामने खड़ा है, हिंदी में तो आपने ये बोला, लेकिन इंग्लिश में इसे हम he बोलेंगे, ठीक है। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। Who is not mine is not anyone's. Motivate my team by telling them a story. I'll motivate my team by telling them a story. दूल्हा किस घोड़े पर बैठना पसंद करेगा? Which horse would the groom like to sit on? Which horse would the groom like to sit on? कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है पर मैं हैंडल कर लेती हूँ। Sometimes many problems arise but I tackle. Sometimes many problems arise but I tackle. Or you can say but I handle. पूछना पड़ेगा। I'll have to ask. I'll have to ask. आराम से पूछो, मतलब आराम से पूछो, समय है आपके पास तो आप बोलिए take your time before asking. Take your time before asking. पूछ कर बताओ। Ask and let me know. Ask and let me know. कितनी ऐठ है उसमें? How arrogant he is. How arrogant he is. तुम जहां भी जाते हो छा जाते हो। You make an impression wherever you go. You make an impression wherever you go. मुझे दूसरी जॉब नहीं मिल रही, नहीं तो मैं कब का ये जॉब छोड़ देता। I'm not getting a new job, otherwise I would have left this job long ago. I'm not getting a new job, otherwise I would have left this job long ago. मेरे पास पैसे नहीं है वरना कब का लौटा देता। I haven't got any money, otherwise I would have returned it long ago. I haven't got any money, otherwise I would have returned it long ago. मैं घूमने जा रही हूँ, मुझे घूमना पसंद है। I'm going on a trip. I like visiting places. I'm going on a trip. I like visiting places. शर्ट पहले से ही सीधी है, उसे सीधी करने की जरूरत नहीं है। The shirt is already right side out. No need to turn it right side out. The shirt is already right side out. No need to turn it right side out. Or you can say there is no need to turn it. मन में पढ़ो. Read silently. Read silently. ऐसा क्यों किया? Why did you do so? Why did you do so? उनकी जब मर्जी होती है तब वो मुझसे बात करते हैं। He talks to me whenever he wants to. He talks to me whenever he wants to. उसकी जबान ही कड़वी है। She has bitter tongue. She has bitter tongue. वो जितना कमाती है उतना खर्च भी कर देती है। She spends the whole of her earnings. She spends the whole of her earnings. मैम अभी ऑफिस में नहीं है, आप उनके नंबर पर कॉल कर लीजिए। Ma'am is not in the office at this moment, so call on her number please. Ma'am is not in the office at this moment, so call on her number please. मैम एक गलत एंट्री हो गई है, उसे सही करने के लिए क्या करना होगा? Ma'am, I've made a wrong entry. What will I have to do to make it right? Ma'am, I've made a wrong entry. What will I have to do to make it right? सर मुझे गाड़ी वाले का नंबर दे दीजिए। Sir, give me the driver's number please. Sir, give me the driver's number please. मुझे इंग्लिश याद करके नहीं बल्कि रियल इंग्लिश सीखनी है। I want to learn English. I don't want to cram it. I want to learn English. I don't want to cram it. Cram का मतलब होता है रट्टा लगाना। जैसे कि अगले दिन एग्जाम होता है तो आप फटाफट आज रट्टा मारते हैं कि कल जाके क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं cram. I want to learn English. I don't want to cram it. वो तुम्हारे खिलाफ जाल बिछा रहे हैं। They are setting a trap for you. They are setting a trap for you. हर चीज हर किसी को मिले ये जरूरी नहीं है। It's not necessary for everyone to get everything. It's not necessary for everyone to get everything. हर किसी का हर जगह जाना जरूरी नहीं है। It's not necessary for everyone to go everywhere. It's not necessary for everyone to go everywhere. या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं Everyone doesn't need to go everywhere. Everyone doesn't need to go everywhere. हर किसी की अपनी मर्जी होती है। Everyone has their own choices. Everyone has their own choices. हमें किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। We should not force anybody. We should not force anybody. तुमने इंजेक्शन लगवा लिया क्या? Did you get injected? Did you get injected? अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। Protect your belongings yourself. Protect your belongings yourself. खाना खा लो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। Eat your food before it gets cold. Eat your food before it gets cold. तुमने सुना रोहन की नौकरी लग गई। Did you hear Rohan got a new job? Did you hear Rohan got a new job? खाना बन गया, रिया को बुला दोगे क्या? Dinner is ready. Can you get Riya? Dinner is ready. Can you get Riya? जाओ पापा को बुला लाओ, वो बाहर हैं। Go and get your father. He is outside. Go and get your father. He is outside. मुझे कम मत समझना। Don't underestimate me. Don't underestimate me. कलम की पावर को कम मत समझना। Don't underestimate the power of the pen. Don't underestimate the power of the pen. मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। I'll choke you. I'll choke you. choke का मतलब होता है गले में घुटन सी होना, और यहाँ choke एज अ वर्ब यूज हुआ है जिसका मतलब है गला दबाना। उन्होंने मुझसे दोस्ती कर ली। They befriended me. They befriended me. बिजली की कीमत फिर से बढ़ गई है। The cost of electricity has risen again. The cost of electricity has risen again. पहले 3 महीनों तक आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा। It won't cost you a penny for the first 3 months. It won't cost you a penny for the first 3 months. अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें ही दोषी मानूंगा। If anything goes wrong, I will hold you responsible. If anything goes wrong, I will hold you responsible. मेरे हिसाब से तुम गलत कर रहे हो। I think that you are being unfair. I think that you are being unfair. तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? Who do you think will win? Who do you think will win? शायद तुम सही हो। Maybe you are right. Maybe you are right. तुम किसके लिए काम करते हो? Who do you work for? Who do you work for? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है उसने मेरे लिए ऐसा कहा। I can't believe he said that about me. I can't believe he said that about me. उसने कुछ गलत नहीं किया था। She had done nothing wrong. She had done nothing wrong. वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था।
He was standing in the middle of the road. He was standing in the middle of the road. सड़क खाली है, मतलब आप कहना चाहते हैं रास्ता साफ है, जल्दी आ जा. The road is clear, come quickly. The road is clear, come quickly. मेरा वहां जिक्र हुआ. I was mentioned there. I was mentioned there. मैं देख कर आता हूँ वो बाहर है या नहीं. I'm going to see whether he is outside. I'm going to see whether he is outside. Or you can say whether he is outside or not. उसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ. Don't over pamper him. Don't over pamper him. तुम्हारा बैग गिर गया. You dropped your bag. You dropped your bag. अपना बैग उठाओ. Pick your bag up. Pick your bag up. Or you can say pick up your bag. लाइट चली गई. Power went off. Power went off. लाइट आ गई. Power is back on. Power is back on. अपना काम उससे मत करवाओ. Don't get him to do your work. Don't get him to do your work. Or you can say don't get your work done by him. Don't get your work done by him. हड़बड़ाओ मत. Don't make haste. Don't make haste. मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? Am I responsible for you? Am I responsible for you? देखते हैं. Let's see. Let's see. या फिर आप कई बार फ्यूचर की बात करते हैं तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं. We'll see. We'll see. मतलब देखेंगे. अब निकलो यहाँ से. Now get out of here. Now get out of here. अबे चुप. उसके आगे एक शब्द भी बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? Hey, shut up. If you utter one more word, I'll break your face. Got it? Hey, shut up. If you utter one more word, I'll break your face. Got it? आपके बाल लंबे हैं तो आप पर पफ हेयर स्टाइल अच्छी लगती है. You've got long hair so puff hairstyle suits you. You've got long hair so puff hairstyle suits you. मैंने वहाँ बहुत सारी शॉपिंग की. I shopped a lot there. I shopped a lot there. अगर आपने ये दोबारा किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी. If you do this again, I'll not talk to you. If you do this again, I'll not talk to you. महीना खत्म हो गया. The month is over. The month is over. अगर उसने मुझे कॉल कर दिया तो what if he calls me up? What if he calls me up? मन कर रहा है कि बारिश में नहा लूं. I feel like enjoying the rain shower. I feel like enjoying the rain shower. मैं कुछ खाने के लिए तड़प रहा हूँ. I'm starving. I'm starving. तुम क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती मुझे फर्क नहीं पड़ता. I don't care whatever you think. I don't care whatever you think. इस समय तक पिताजी घर आ गए होंगे. Father will have reached home by this time. Father will have reached home by this time. बाल कटवा लो. Get your hair cut. Get your hair cut. Or you can say have your hair cut. Have your hair cut. जब आप किसी और से कोई काम करवाते हैं तो आप get plus third form यूज करते हैं वर्ड की या फिर have plus third form यूज करते हैं. आसमान में घने बादल छाए हुए हैं. The sky is overcast. The sky is overcast. बारिश हो सकती है. It may rain. It may rain. आज आसमान बिल्कुल साफ है. The sky is clear today. The sky is clear today. उधारी आना बाकी है. Borrowers are yet to repay. Borrowers are yet to repay. लड़के वाले रिश्ता लेकर आए हैं. Suitors have come with the proposal. Suitors have come with the proposal. उसे आदमी की पहचान है. He has the ability to judge a person. He has the ability to judge a person. मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है. I must say what you are doing is wrong. I must say what you are doing is wrong. तुम होते कौन हो मुझे कहने और समझाने वाले? Who are you to tell me and make me understand what to do? Who are you to tell me and make me understand what to do? अच्छे बुरे की पहचान है मुझे. I know what's right and what's wrong. I know what's right and what's wrong. Or you can say I know the difference between right and wrong. I know the difference between right and wrong. Or you can say I can distinguish right from wrong. I can distinguish right from wrong. आजकल लाइट बहुत जा रही है. Nowadays power goes off frequently. Nowadays power goes off frequently. क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? कुछ खास नहीं. Nothing special. Nothing special. वो बहाने बनाती रहती है. She keeps making up excuses. She keeps making up excuses. तुम्हारा मतलब क्या है? What do you mean? What do you mean? मुझे जाना है. I have to go. I have to go. लेकिन मुझे अभी तुमसे बात करनी थी. But I still wanted to talk to you. But I still wanted to talk to you. मुझे सच में जाना है. I really have to go. I really have to go. मुझे काम करने हैं. I have things to do. I have things to do. तुम सवाल क्यों पूछ रही हो? Why are you questioning? Why are you questioning? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी. I was just asking. I was just asking. अब मुझे फोन रखना होगा. I have to get off the phone now. I have to get off the phone now. इतनी जल्दी क्या है फोन रखने की? Why are you in hurry to get off the phone so fast? Why are you in hurry to get off the phone so fast? अब मैं फोन रख रही हूँ. I'm getting off the phone now. I'm getting off the phone now. मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी. I was missing you a lot. I was missing you a lot. ये वास्तव में कमाल है. That's remarkable indeed. That's remarkable indeed. अब यहाँ पे ये बोला मैंने फिर that का यूज कर लिया. तो जब सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो क्योंकि वो बात वो बोल रहा है इसलिए that का यूज कर सकते हैं. तुम ध्यान क्यों नहीं देते? Why don't you pay attention? Why don't you pay attention? मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ. I want to speak like you. I want to speak like you. किसी को ढूंढो जिसके साथ तुम अंग्रेजी में बातचीत कर सको. Find someone with whom you can converse in English. Find someone with whom you can converse in English. क्या ये आपके साथ हुआ है? Has this happened to you? Has this happened to you? मैं आपसे बात नहीं करूंगी. I'll not talk to you. I'll not talk to you. ऐसा दोबारा मत बोलना. या फिर आप उससे कह रहे हैं ऐसा दोबारा मुंह से मत निकालना. Don't utter it again. Don't utter it again. बुरी आदतें छोड़ दो. Give up bad habits. Give up bad habits. दूसरों की बुराई नहीं करते या फिर दूसरों की बुराई मत किया करो. Don't speak ill of others. Don't speak ill of others. Speak ill of someone मतलब किसी की बुराई करना. आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है. फोन पे आप बात करते हैं रुक रुक के आवाज आती है उसके लिए आप बोल सकते हैं your voice is coming in and out. Your voice is
कमिंग इन एंड आउट। इसे ऐसे नहीं किया जाता, दिस इज नॉट द वे टू डू इट, दिस इज नॉट द वे टू डू इट। मैं दिखाता हूं कि कैसे करना है, लेट मी शो हाउ टू डू दिस, लेट मी शो हाउ टू डू दिस। उसका गुस्सा सच था या सिर्फ एक ड्रामा? वॉज हर एंगर रियल और वॉज इट जस्ट एन एक्ट? वॉज हर एंगर रियल और वॉज इट जस्ट एन एक्ट? ये कोई ड्रामा नहीं था, इट वॉजंट एन एक्ट, इट वॉजंट एन एक्ट। अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम ये मौका खो दोगे। इफ यू डोंट डू इट सून यू आर गोइंग टू लूज दिस चांस, इफ यू डोंट डू इट सून यू आर गोइंग टू लूज दिस चांस। मेरी चाबियां खो गई, आई लॉस्ट माई कीज, आई लॉस्ट माई कीज। मेरा काफी वजन कम हुआ है, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। मैं अभी नहीं आ सकती, आई कांट कम नाउ, आई कांट कम नाउ। बस मैं बच्चों को सुलाने जा रही हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग द चिल्ड्रन टू बेड, आई एम जस्ट पुटिंग द चिल्ड्रन टू बेड। मैं तुमसे कल मिलती हूँ, आई सी यू टुमारो, आई सी यू टुमारो। मेरे रास्ते में मत आओ, डोंट गेट इन माई वे, डोंट गेट इन माई वे। अपना रास्ता नापो या फिर अपना रास्ता पकड़ो, गो योर वे, गो योर वे। कई बार आप किसी चीज में फंस जाते हैं तो किसी फ्रेंड से बोलते हैं कोई रास्ता निकालो, फाइंड सम वे आउट, फाइंड सम वे आउट। वो सोते सोते चौंक गया। कभी कभी सोते सोते इंसान हिल जाता है तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ही जॉल्टेड व्हाइल स्लीपिंग, ही जॉल्टेड व्हाइल स्लीपिंग। और कई बार इंसान चौंक के उठ जाता है तो आप बोलते हैं वो चौंक कर जाग गया, ही जॉल्टेड अवेक, ही जॉल्टेड अवेक। अलार्म बज रहा है, अलार्म इज गोइंग ऑफ। अलार्म बजने के लिए आप यूज करते हैं गो ऑफ का, ठीक है? दिस इज द फ्रेजल वर्ब, अलार्म इज गोइंग ऑफ। और मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं अलार्म बज गया तो आप बोलिए अलार्म वेंट ऑफ, अलार्म वेंट ऑफ। तमीज से बात करो, इसे आप इंग्लिश में कई तरीके से बोल सकते हैं, दो तो मैं आपको बता रही हूं, माइंड योर लैंग्वेज या फिर माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। और अगर आप बोलते हैं तमीज से पेश आओ या तमीज से बर्ताव करो तो आप बोलिए माइंड योर मैनर्स, माइंड योर मैनर्स। वो मुझसे नाखुश है, शी इज डिस्प्लीज्ड विद मी, शी इज डिस्प्लीज्ड विद मी। इच्छाओं को दबाओ मत, डोंट सप्रेस योर डिजायर्स, डोंट सप्रेस योर डिजायर्स। उसकी पोल खुल गई, ही इज एक्सपोज्ड, ही इज एक्सपोज्ड। या फिर इस तरीके से आप बोलते हैं उसकी पोल खुलने वाली है, ही इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड, ही इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड। या फिर आप कई बार ऐसे भी बोलते हैं मैं उसकी पोल खोलूंगा, आई विल एक्सपोज हिम, आई विल एक्सपोज हिम। वे हमारे आगे झुकते हैं, दे यील्ड टू अस, दे यील्ड टू अस। मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। वह स्तब्ध होकर खड़ा रहा, he stood stunned, he stood stunned। आप यहाँ कैसे? जब आप कहीं किसी से अचानक से मिल जाते हैं तो आप पूछते हैं आप यहाँ कैसे? तो उसके लिए एक सेट फ्रेज है, आप पूछिए what brings you here, what brings you here। मैं आपसे मिलने आई हूँ, I've come to see you, I've come to see you। उसने मेरा खाना अपवित्र कर दिया, he defiled my meal, he defiled my meal। defile का मतलब होता है अपवित्र कर देना। उसने गंदे हाथों से पानी अपवित्र कर दिया, he defiled the water with dirty hands, he defiled the water with dirty hands। कई बार आप परेशान होते हैं परिस्थिति through difficult times, or you can say we are going through tough times। वो छोटी सोच वाला है, he is narrow minded, he is narrow minded। उसकी सोच छोटी है, he has a narrow mind, he has a narrow mind। हम काफी खुले विचारों वाले हैं, we are quite open minded, we are quite open minded। उसे तंग मत करो या फिर उसे छेड़ो मत, don't tease her, don't tease her। मैं तुम्हारी शिकायतों से तंग आ चुका हूं, I am fed up with your complaints, or you can say I am tired of your complaints। मैं खाली बैठे बैठे तंग आ गया हूं, पक चुका हूं, I am tired of sitting idle, I am tired of sitting idle। चुप हो जाओ वरना चाटा मारूंगी या फिर थप्पड़ मारूंगी, keep mum or I'll slap you, or you can say keep mum or I'll give you a slap। हम पास पास बैठे थे, we were sitting close, we were sitting close। मुझे कोई पछतावा नहीं है, I have no regrets, I have no regrets। तुम अपनी भूल पर पछताओगे, you will regret for your mistakes, or you can say you will repent of your mistakes। तो ध्यान रखिएगा regret for and repent of, किस बात पर पछता रहे हो? तो आप इसे इंग्लिश में बोलिए what are you repenting of, or you can say what are you regretting for। नेक्स्ट वन इज, यह एक जटिल सवाल है। जब कोई बहुत ही मुश्किल सा कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप बोलते हैं जटिल, उसे इंग्लिश में बोलिए इंट्रिकेट। तो इंट्रिकेट मींस होता है जटिल, इट्स एन इंट्रिकेट क्वेश्चन, इट्स एन इंट्रिकेट क्वेश्चन। यह एक पेचीदा मामला है, इट्स एन इंट्रिकेट मैटर, इट्स एन इंट्रिकेट मैटर। वो खाली बातें करता है, मतलब कि खोखली बातें करता है जिसमें कोई दम नहीं होता, he has bare words, or you can say he has mere words। मैं खाली नहीं बैठ सकती, I can't sit idle, I can't sit idle। कमरा खाली करो, vacate the room, vacate the room। मुझे प्यास लगी है, I am thirsty, or you can say I am feeling thirsty। मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, I will beat you, or you can say I will beat you up। So beat means मारना और beat up भी मारने के लिए एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है? The next one is हमें आपसे हमदर्दी है, we have sympathy with you, we have sympathy with you। तुम मुझ पर लांछन नहीं लगा सकते, you can't cast aspersion on me, you can't cast aspersion on me। So aspersion का मतलब होता है लांछन। बाजार ठसा ठस भरा हुआ था, जब बहुत भीड़ होती है मार्केट में तब इस तरीके से आप बोलते हो, इंग्लिश में बोलिए market was packed, market was packed। मुझे उनका घर मालूम है, I know where his house is, I know where his house is। जहां तक मुझे पता है वे यहाँ रोज आते हैं, as far as I know he comes here every day। So as far as I know का मतलब हो गया जहां तक मुझे पता है। वह पिछड़ रहा है, जैसे रेस लगी हो, दो लोग दौड़ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, जो पीछे रह जाता है बोलते हैं वो पिछड़ रहा है। इसके लिए आप बहुत अच्छा सा फ्रेजल वर्ब यूज कीजिए, lag behind। तो आप बोलिए he is lagging behind, he is lagging behind। वह कक्षा में पिछड़ गया है, he has lagged behind in the class, he has lagged behind in the class। तो सिर्फ रेस के लिए नहीं, इस तरीके की चीजों में भी पिछड़ जाने के लिए आप इसे यूज करते हैं। ये महंगाई जान ले रही है, this dearness is killing। It's really a nice word, dearness। dearness का मतलब होता है महंगाई, this dearness is killing। वो तुम्हारी बुराई करती है, she speaks ill of you, she speaks ill of you। इसमें क्या बुराई है? What evil is there in it, what evil is there in it। कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा, something or the other must happen, something or the other must happen। उसने तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाया। तो गाइस लांछन वर्ड फिर से आया तो आप याद करने की कोशिश कीजिए कौन सा वर्ड था? aspersion। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? he casted aspersion on your character, he casted aspersion on your character।
उसने हमारे बेटे को कुछ टोना टोटका कर दिया है। मैं कह रही हूं टोना टोटका, इसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे चार्म। शी हैज अफेक्टेड आवर सन विद चार्म। आई एम टेलिंग यू। तो जब आप इस तरीके से बहुत ही जोर देके ये बोलते हैं मैं कह रही हूं, तो वहां आप बोलिए आई एम टेलिंग यू। शी हैज अफेक्टेड आवर सन विद चार्म, आई एम टेलिंग यू। द नेक्स्ट वन इज जल्दी करो, कहीं वह कुछ कर ना बैठे। हरी अप लेस्ट ही शुड टेक अ रॉन्ग स्टेप। हरी अप लेस्ट ही शुड टेक अ रॉन्ग स्टेप। हमें पता चला है कि तुम कार खरीद रहे हो, तो हमें पता चला है, इसके लिए आप बोलेंगे वी हैव कम टू नो, या फिर इट हैज कम टू आवर नॉलेज दैट यू आर बाइंग अ न्यू कार। तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मुंह मत बनाओ या फिर शक्लें मत बनाओ। बच्चे भी बनाते हैं ऐसे शक्लें और कभी-कभी बड़े भी बनाते हैं, तो उसके लिए आप बोलिए डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस, शक्लें बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग फेसेस या फिर क्विट मेकिंग फेसेस। मैं उसे शक्ल से पहचानती हूं, तो कई बार कहते हैं ना हाँ बाय फेस मैं उन्हें पहचान लूंगी, वैसे नहीं याद आ रहा है, तो इंग्लिश में बोलिए आई नो हिम बाय अपीयरेंस। आई नो हिम बाय अपीयरेंस। उसका चेहरा चमक उठा, कई बार खुशी से चेहरा चमक उठता है, तो आप बोलिए हर फेस लिट अप। हर फेस लिट अप। ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी थी, तो यहां आप ठसाठस के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, द ट्रेन वाज स्टफ्ड विद क्राउड। जैसे स्टफ्ड पराठा होता है उसमें कुछ मटेरियल अंदर भरा होता है, वैसे ही यहां लोग भरे होते हैं ट्रेन में, तो आप बोलिए द ट्रेन वाज स्टफ्ड विद क्राउड। फनी है बट इंटरेस्टिंग है। द नेक्स्ट वन इज वह मुस्कुराते हुए अंदर आया। ही केम इन विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। ही केम इन विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। भिखारियों को भिक्षा मत दो। डोंट गिव आर्म्स टू बेगर्स। डोंट गिव आर्म्स टू बेगर्स। धीरे बोलो नहीं तो कोई सुन लेगा। स्पीक लो लेस्ट यू बी ओवरहर्ड। स्पीक लो लेस्ट यू बी ओवरहर्ड। कीमतें जगह के हिसाब से अलग अलग होती हैं। रेट्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। रेट्स वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तापमान घटता बढ़ता रहता है। द टेम्परेचर कीप्स फ्लक्चुएटिंग। द टेम्परेचर कीप्स फ्लक्चुएटिंग। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? डू यू मिस मी? डू यू मिस मी? इतनी ज्यादा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सो मच दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। सो मच दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। तुम्हारी औकात क्या है? व्हाट्स योर स्टेटस? व्हाट्स योर स्टेटस? अपनी सलाह अपने पास रखें आप, समझे? कीप योर एडवाइस टू योरसेल्फ। गॉट इट? कीप योर एडवाइस टू योरसेल्फ। गॉट इट? साबुन लगाओ। साबुन लगाने के लिए आप सोप एज अ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सोप तो एक चीज होती है लगाने की, लेकिन सोप एक वर्ड भी है जिसका मतलब होता है उसे लगाना। तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं सोप अप। सोप अप। या फिर आप बोल सकते हैं सोप योरसेल्फ। सोप योरसेल्फ। अपने पैर डालो। जब आप बच्चों को पैंट पहनाते हैं तो बोलते हैं ना पैर डालो, तो आप बोलिए पुट योर लेग इन। पुट योर लेग इन। जाओ पहले पॉटी कर लो। गो पूप फर्स्ट। और यू कैन से गो एंड पूप फर्स्ट। तो पूप का मतलब होता है पॉटी करना। तुम चलो मैं आता हूं। यू गो आई एम कमिंग अलोंग। और यू कैन से यू गो आई विल कम अलोंग। चाय बनाऊं, पियोगे? इस तरीके से आप अपने हस्बैंड से पूछते हैं घर में, तो आप इसे पूछ सकते हैं आई एम गोइंग टू मेक टी, वुड यू लाइक सम? आई एम गोइंग टू मेक टी, वुड यू लाइक सम? और सिंपली आप ये बोल सकते हैं शैल आई मेक टी फॉर यू? शैल आई मेक टी फॉर यू? तुम वैसा कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ पे वैसा कहने से ये मतलब हो गया कि आप किसी बात को लेके बोल रहे हैं ना कि वैसा कुछ नहीं करोगे, तो आप बोलिए यू वोंट डू एनीथिंग ऑफ द काइंड। यू वोंट डू एनीथिंग ऑफ द काइंड। तो यहाँ ऑफ द काइंड का मतलब हो गया लाइक और सिमिलर टू व्हाट हैज बीन सेड, जो आप पहले बोल चुके हैं उससे सिमिलर। सारी मोमबत्तियां एक फूंक में बुझा दो। ब्लो ऑल द कैंडल्स इन वन गो। ब्लो ऑल द कैंडल्स इन वन गो। क्या तुम्हें दिख रहा है कि अंतिम तिथि कहां लिखी हुई है? जैसे किसी दवाई पे आप एक्सपायरी डेट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे भले वो लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे हम से का यूज करते हैं। तो आप बोलिए डू यू सी वेयर इट सेज द एक्सपायरेशन डेट? डू यू सी वेयर इट सेज द एक्सपायरेशन डेट? इसमें लिखा है 5 ml। मान लीजिए आप दवा की खुराक पढ़ रहे हैं, आपको बोलना है इसमें लिखा है 5 ml, लेकिन आप इंग्लिश में बोलेंगे इट सेज 5 ml। Boost your NEET preparation by registering for free now. Yes, you heard it right. It is free. Registration has already started on June 8th. The mock test will be conducted on July 3rd and July 10th between 2 and 5:20 p.m.